ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی کرسمس تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مسیحی برادری نے اپنا مذہبی تہوار جوش و خروش سے منایا۔ گلبرگ میں خصوصی تقریبات کا انعقاد جس میں شوبز ستاروں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں ٹک ٹاکرز، شوبز ستاروں، میڈیا پرسنز اور گلوکاروں نے شرکت کی۔ مسیحی برادری کی جانب سے سجائی گئی تقریب میں کیٹ واک کا اہتمام کیا گیا اور سنگرز نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ تقریب کے اختتام پر لکی ہیئر سیلون کی جانب سے کرسمس کیک کاٹا گیا۔ 25 دسمبر کے دن کے حوالے سے مسلم لیگ نون پاک پتن شریف کے نائب صدر ملک حاجی لیاقت حسین کھوکھر کی طرف سے اس دن کو شیان شان طریقے سے منایا گیا۔ سابق ایم پی اے میاں نوید کی قیادت میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں نوید علی نے کہا کہ آج ہم دو شخصیت کا جنم دن منا رہے ہیں، ایک جسے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، اس نے پاکستان کو بنایا تھا، اور دوسری شخصیت سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جس نے پاکستان کو سنوارا ہے اور انشاءاللہ اسے مزید ترقی کے راستوں پر گامزن کریں گے۔ اس موقع پر سابق چیئرمین چودھری مظفر اقبال، سابق وائس چیئرمین چودھری اسرار احمد، محمد جمیل فریدی، چودھری محمد اعظم ایم ڈی بٹ، چودھری عبدالقیوم، ماہر گلزار احمد، پیر باغ علی، چشتی بہادر علی بلوچ، ندیم خان بلوچ، چودھری لائق، کاشف رضا، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب سید حسن عباس بخاری اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے آج قائد محمد علی جناح کی بھی سالگرہ ہے، قائد محمد نواز شریف کی بھی سالگرہ ہے، اور آج اسی تقریب میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں جو کیک کاٹنے کی سیریمنی ہے۔ تو فرید صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ آج ایک بہت بڑا دن ہے اور لیڈروں کا دن ہے، تو میں بھی یہاں بیٹھا السلام علیکم جی، میں سارے لوگوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا شکر گزار ہوں، خاص کر میاں نوید صاحب کا کہ رانا صاحب نے میری ڈیوٹی لائی سی 25 دسمبر کے کیک دی۔ اتحاد پریس کلب بہاول نگر کے زیر انتظام 25 دسمبر یوم قائد کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی مرکزی سینئر نائب صدر ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان سید طاہر احمد شاہ تھے۔ تقریب سے اپنے خطاب میں سید طاہر احمد شاہ کا کہنا تھا کہ علاقہ کی تعمیر و ترقی میں میڈیا انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ صحافی برادری عوام کو درپیش مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس موقع پر صدر اتحاد پریس کلب سردار اجمل بلوچ کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کو 77 سال ہو گئے ہیں آزاد ہوئے، مگر آج بھی ہم غربت، بے روزگاری، بھوک اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تقریب سے سید مسعود اقبال شاہ ضلعی صدر ریجنل یونین آف جرنلسٹ بہاول نگر اور محمد منیر کھوکھر جنرل سیکرٹری اتحاد پریس کلب ڈسٹرکٹ بہاول نگر نے بھی خطاب کیا۔ ڈائمنڈ شہر میں بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور بانی مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کا کیک سیاسی اور سماجی رہنما چودھری انعام بلڑ کے ڈیرے پر کاٹا گیا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے ملک افضل کھوکھر اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سابق ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون ملک افضل کھوکھر نے این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، قوم ہمیشہ قائد اعظم کی احسان مند رہے گی، اور میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کو بچایا اور ترقی دی، اور اب میاں محمد نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریونڈ میں اتحاد گروپ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم دن تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اتحاد گروپ نے کیا ہے، ہمیں ایز اے پاکستانی سب کو یہ کرنا چاہیے، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کا جو دن ہے، سب سے پہلے تو مسیح برادری کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہت اہم دن ہے، اور ہماری سب کی طرف سے انہیں بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ ان کا پاکستان میں بہت بڑا ہاتھ ہے ہر شعبے میں۔ اور میں کہتا ہوں دیکھیں، آج آپ قومی اسمبلی کی دیکھیں، پنجاب کی دیکھیں، کسی دیکھیں، ان کا ایک کوٹا ہے، تو جو ہم اقلیتوں کے لیے کرتے ہیں، میں باقی ملکوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ پاکستان ایک مثال ہے۔ تو آج کا دوسرا دن جو میاں نواز شریف صاحب کی سالگرہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان میں بہت بڑا ترقی کا ہاتھ ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے آپ نے دیکھا ہے موٹر وے بنائی، اورنج ٹرین بنائی، ایٹمی دھماکے کیے، ملک سے دہشت گردی ختم کی، جو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سی میاں نواز شریف صاحب نے ختم کی۔ تو انشاءاللہ
मियाँ नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे तो देखेंगे कि मोटरवेयों का और बाकी शहरों में भी ऑरेंज ट्रेन का आगाज़ होगा। तीसरा, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज उनका पैदाइश दिन है और हम सबको चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बानी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है पाकिस्तान जो हमें क़ायद आज़म की सूरत में मिला है, जो कलमे के नाम पर बना है। तो जो ज़िंदा कौमें अपने मोहसनों को याद रखती है, तो आज क़ायद आज़म का जो डे है इत्तेहाद ग्रुप ने बहुत अच्छे तरीके से मनाया है और इंशाअल्लाह हम अपने बानी का हर साल अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इसी तरह हर शहर में, हर गांव में, हर हलके में ये सिलसिला शुरू करेंगे। सर, आप साबका एमपीए रह चुके हैं रावण में और इस वक्त भी आप उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। तो अरसा दराज से रावण के शहरियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अरसा दराज से रावण में सीवरेज सिस्टम का जो मसला वो मैंने आपका सवाल, इस वक्त जो नए सीईओ साहब आए हैं उन्हें 6 करोड़ की ग्रांट भी दी गई है, लेकिन जो सीवरेज का मसला वो वैसे का वैसे ही है। असल ने आपने ना बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं फर्स्ट टाइम एमपीए बने हूँ, लेकिन पंजाब हुकूमत नहीं बनी। अगर पंजाब हुकूमत बनती, जो रावण का मेन इशू है ना, इस सीवरेज का पाइपलाइन बहुत छोटे हैं, क्योंकि बहुत पहले के डले हुए हैं, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने मौका दिता फिर रावंड शहर को एक मिसाली शहर बनाएंगे, क्योंकि रावंड शरीफ आप कहीं भी जाए ना तो रावंड का नाम आता है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम आता है, रावंड का नाम आता है तो मरकज़ का नाम आता है। पूरी दुनिया में ये शहर मशहूर है। ये छोटा शहर नहीं है, समझ लें बहुत बड़ा शहर है नाम के लिहाज से, तो आबादी के लिहाज से भी बहुत है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एमएनए के साथ मिलके किसी एक साइड से इसका काम शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ नई सीवरेज लैंड डलने वाली है वो डालेंगे। डिस्पोजिबल नए बनने वाले हैं, क्योंकि हम इसे वासा के कंट्रोल में करेंगे। वासा को एक अंदाज़ा है, वो आबादी के लिहाज से सीवरेज पाइपलाइन डालती है। तो इंशाल्लाह ये जो इशू है ख़त्म करेंगे। और सबसे पहले रावंड में इंशाल्लाह स्टेडियम बनेगा, बच्चों की ग्राउंड बनेगी। मेन मसला कब्रिस्तान का है, अल्लाह के फजल से हम वो भी हल करेंगे। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आप 5 साल में देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जब भी दौर आता है मुल्क में तरक्की हुई है। तो इंशाल्लाह रावंड मेरा भी शहर है, तो इंशाल्लाह यहाँ तरक्की का जो आगाज़ 2017 से रुका था, इंशाल्लाह चौथी दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वहाँ से आगाज़ शुरू होगा। और रावंड क्या पूरे हलके में इंशाल्लाह हम तरक्याती कामों का जाल बिछा देंगे। मिर्ज़ा साहब, ये तकरीबन मलिक अफजल खोखर साहब ने रावंड शहर में तकरीबन काफ़ी पार्क, छोटे छोटे पार्क बनाए हैं रावंड शहर में। तो वो जब पार्कों में इतना पैसा लगा, लेकिन बाद में उनकी देखभाल ना हो सकी, वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। उसके हवाले से अगर पार्क बनाना या अगर कुछ करना ही है तो उसकी देखभाल के लिए देखिए, मैंने स्टेडियम की बात की है, ये बहुत बड़ी पार्क बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ बेशुमार ज़मीनें गवर्नमेंट की भी पड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी पार्क बनाएंगे जो एक मिसाली पार्क होगी। अभी मैं जो देखता हूँ दातागंज बख्श चौक, पट्टी चौक जिसे कहते हैं, हमने दोबारा भी पौधे लगाए हैं, लेकिन जिससे देखभाल नहीं होगी ना तो फिर वो इतने कीमती पौधे लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह हम छोटी पार्कों की बात नहीं कर रहे, स्टेडियम की बात कर रहे हैं। इन बच्चों को हम खेल के ग्राउंड लाजमी देंगे। और जो हॉस्पिटल का मसला है, इंशाल्लाह हॉस्पिटल का मसला भी हम हल करेंगे। यहाँ डायलिसिस का भी सेटअप लेके आएंगे और इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे रावंड के दोनों हॉस्पिटलों को। जी, मैं अपनी टीम, पार्टी की पहचान, इत्तेहाद ग्रुप का बेहद मशकूर हूँ। जब भी कोई पार्टी इवेंट हुआ है, जब नेशनल डे है, हमेशा इन्होंने सेलिब्रेट किया। इनका इत्तेहाद, इनकी मोहब्बत देख के बड़ी खुशी होती है कि मुस्लिम नून के लोग आपस में प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। और आज का दिन हर लिहाज से बहुत अहम है। आज क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी सालगिरह का दिन है। मियाँ जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब उनकी सालगिरह का दिन है। क़ायद आज़म पाकिस्तान बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब हमेशा जब भी उनको इक़्तिदार मिला, उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमेशा अपनी टीम के साथ कोशिश की। और मियाँ साहब का माजी हुआ है कि जब भी हालात जैसे भी हों, जितने भी मुश्किल हों,
जब भी नवाज शरीफ को जिम्मेदारी दी है पाकिस्तान की, तो हमेशा पाकिस्तान ने तरक्की की है। पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत हुआ है, पाकिस्तान में रोज़गार आया है, पाकिस्तान में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं आप देख लें, उठा के देख लें, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़बिल नून की कोशिश से ही हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक दौर आया 3.5 साल का इमरान न्याजी की शक्ल में, जिसने वो मंसूबे जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे थे, माशी तौर पे मजबूत कर रहे थे, वो रोक दिए गए। और वो तरक्की का पहिया, वो डेवलपमेंट का सिलसिला जो चल रहा था बड़ी तेज़ी के साथ, वो वहीं का वहीं रुक गया। और 3.5 साल में मुल्क में महंगाई आई, बेरोज़गारी आई, मुल्क माशी तौर पे कमज़ोर हुआ। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा, सियासी हवाएं बता रही हैं कि आने वाला वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, पाकिस्तान में फिर से खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में फिर से तरक्की आएगी। गरीब का चूल्हा जो ठंडा हुआ है वो इंशाअल्लाह फिर से जलेगा और गरीब खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। ननकाना साहब के नवाई गांव यंगन आबाद यंगसन मेमोरियल चर्च में क्रिसमस की तकरीबात इख्तिताम पजीर। तकरीब में ईसाई कम्युनिटी के मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बरतानिया, अमरीका, कनाडा और दीगर ममालिक से आए हुए मसीह लोगों ने भी अपने आबाई गाँव की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। तकरीब में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएँ की गईं। 8 फरवरी के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए NA 73 के लिए 35 उम्मीदवारान, जबकि PP 50 के लिए 50 और PP 51 के लिए 39 उम्मीदवारान ने अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरों के हवाले कर दिए, जबकि मुस्लिम लीगी उम्मीदवारान असली शेर के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवाने आए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान सईदा नौशीन इफ्तिखार, मोहम्मद अफजल मंशा और राना शाहिद सुहेल मुनफरद अंदाज में कागजात नामजदगी दाखिल करवाने आए। इस मौका पर शहर की सरकर्दा शख्सियत समेत मुस्लिम लीगी क़यादत के हक़ में नारे लगाता बहुत बड़ा जलूस उनके हमरा था। मुस्लिम लीग नून की सईदा नौशीन इफ्तिखार, जमील अशरफ, नवीद अशरफ, PPP के राना महमूद अशरफ, काफ लीग के तसव्वुर अब्बास समेत 35 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP 50 के लिए मुस्लिम लीगी नून के जमील अशरफ, शहद महमूद भट्ट, सईदा अताउल हसन, महमूद रजवान समेत 50 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। एमरा ग्रुप ने ननकाना साहब के सहाफ़ती हलकों में तारीख रकम कर दी। एमरा ग्रुप के पुरअमन और शफाफ इलेक्शन 2024 का इनेकाद सिविल सोसाइटी और मुफक्किरीन ने खूब सराहा। पोलिंग डे के मौका पर वोटर्स और सपोर्टर्स पुरजोश दिखाई दिए। एमरा मेंबरान की इलेक्शन एमरा में भरपूर शिरकत से शरह वोट 100% रही। एमरा इलेक्शन 2024 के लिए बतौर सदर एमरा सैयद सुलेमान मुस्तफ़ा गिलानी 37 वोट हासिल करके मुंतखब हुए, जबकि राय शाहनवाज भट्टी 34 वोट हासिल करके जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। जीतने वाले उम्मीदवार और सपोर्टरान ने खूब जश्न मनाया। जमहूरियत के हुस्न को दोबाला करते हुए मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार आबिद हमीद रहमानी और राना तारिक ने जीतने वाले उम्मीदवारान को फूलों के हार पहनाए और खुश आमदीद कहा। उम्मीदवारान ने पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन करवाने पर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन एमरा मोहम्मद अफजाल भट्ट और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर के जंगलात बदतरीन आतिशज़दगी से तबाह होने लगे। हज़ारों कनार पर मुश्तमिल कुदरती जंगलात आतिशज़दगी से जलकर राख बन गए। करोड़ों पौधे और जड़ी बूटियाँ भी तबाह। जंगलात में होने वाली आतिशज़दगी से शहर में फैलने वाली स्मोक से ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा होने लगीं। बच्चे सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा जंगलात के पास जंगलात को आतिशज़दगी से बचाने का कोई इंतज़ाम नहीं। रात की तारीकी में शरपसंद अनासिर जंगलात में आग लगा देते हैं, जिससे हज़ारों कनाल जंगलात जल गए। नाई शजरकारी में लगाए गए और कुदरती उगने वाले करोड़ों छोटे पौधे, कीमती जड़ी बूटियाँ तबाह। मकामी आबादियाँ आज खुद सारी रात आग बुझाने में मसरूफ़ रहती हैं। महकमा जंगलात आग में लगाने वाले किसी भी शरपसंद को अभी तक पकड़ नहीं रहा।